بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور پر منکی پاکس کا حملہ، خطرناک وائرس نے لاہوریوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ شہر میں منکی پاکس کے 5 مریض رپورٹ، جنرل اسپتال میں علاج کے لیے آنے پر منکی پاکس کے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ 2 مریض میو اسپتال سے سرجری کے بعد وائرس کا شکار ہوئے۔ شہر میں منکی پاکس وائرس کے مریض بڑھنے لگے۔ رواں ماہ کے دوران لاہور میں منکی پاکس کے 5 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ جنرل ہسپتال میں علاج کے لیے آنے پر منکی پاکس کے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ 2 مریض میو ہسپتال سے سرجری کے بعد منکی پاکس وائرس کا شکار ہوئے۔ 24 سالہ محمد ریاض کو میو ہسپتال میں سرجری کے بعد منکی پاکس وائرس لاحق ہوا۔ 42 سالہ نجمہ پروین میو ہسپتال میں سرجری کے بعد منکی پاکس میں مبتلا ہو گئی۔ شہر میں منکی پاکس وائرس کے مریضوں کا بڑھنا لمحہ فکریہ ہے۔ اگر وائرس پر قابو پانے کے لیے اقدامات نہ اٹھائے گئے تو مزید شہریوں کے بھی متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ لاہور کی ہوا زہریلی، ایشیا کا آلودہ ترین شہر، آلودگی کا ہنسا 280 کے ساتھ بلند ترین سطح پر۔ شالیمار 720، برکی روڈ کا AQI 535 رہا۔ اقبال ٹاؤن 483، سول سیکریٹریٹ میں شرح 448 رہی۔ شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ ادھر ضلع انتظامیہ نے سموگ SOPs کو نظر انداز کر دیا۔ گلیوں سڑکوں کی تعمیر کے دوران گرد و غبار دھول فضا کو آلودہ کرنے لگی۔ لاہور میں فضائی آلودگی برقرار، شہر کا مجموعی کوالٹی انڈیکس 277 ریکارڈ کیا گیا۔ صبح کے اوقات میں شہر آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا۔ سب سے زیادہ کوالٹی انڈیکس سول سیکریٹریٹ میں رہا جو 738 ہے۔ شالیمار میں آلودگی کی شرح 515 ریکارڈ کی گئی۔ برکی روڈ 510، صدر کینٹ میں AQ لیول 362 رہا۔ علامہ اقبال ٹاؤن 241، DHA میں شرح آلودگی 186 ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دوسری جانب پانی کا چھڑکاؤ نہ ہونے سے ہوا میں دھول کا زہریلا بوجھ بڑھنے لگا۔ سڑکوں کی تعمیر کے دوران گرد و غبار دھول فضا کو آلودہ کرنے لگی۔ شہر میں ترقیاتی منصوبوں پر سموگ SOPs پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ضلع انتظامیہ نے ترقیاتی منصوبوں پر سموگ SOPs کو نظر انداز کر دیا۔ 137 ارب کا لاہور ڈیولپمنٹ پلان، مگر ماحولیات کا کوئی پلان نظر نہ آیا۔ چبورچی، چنگی، امر سدھو، ڈیفنس روڈ پر سموگ SOPs کے خلاف ورزی ہونے لگی۔ چندرائے روڈ، ماڈل ٹاؤن سمیت شہر بھر میں SOPs کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ EPA کی واضح ہدایات کے باوجود تعمیراتی سائٹ پر گرین کور غائب ہیں۔ گرین کور پانی کا چھڑکاؤ نہ ہونے سے اسموگ کے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور مہنگائی نے سفید پوش طبقے کا بھرگس نکال دیا۔ چاول، چینی، گھی، آئل، معیاری آٹے سمیت سب کچھ مہنگا، کوئی چیز بھی سستی نہ رہی۔ چاول 560 روپے کلو تک فروخت ہونے لگے۔ 5 کلو آٹے کا تھیلا 825 روپے تک پہنچ گیا۔ گھی 560 اور معیاری خوردنی آئل کی قیمت 610 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ مہنگائی نے غریب کی 2 وقت کی روٹی مشکل بنا دی، کوئی چیز بھی سستی نہ رہی۔ چاول، چینی، گھی، آئل، معیاری آٹے سمیت سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں چاول کی مختلف اقسام 380 سے 560 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہیں۔ نجی کمپنی کا 5 کلو آٹے کا تھیلا 825 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ خوردنی تیل اور گھی کی قیمتیں عام صارفین کی قوت خرید سے باہر ہو گئیں۔ گھی 560 روپے لیٹر، معیاری خوردنی آئل 610 روپے لیٹر تک جا پہنچا ہے۔ شہری کہتے ہیں بنیادی غذائی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ سفید پوش طبقے کے لیے برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت اور متعلقہ ادارے خوراک کی قیمتوں میں فوری کمی کے لیے اقدامات کریں۔ میٹرک کے ضمنی امتحانات کے نتائج جاری، 55% طلبہ فیل ہو گئے، صرف 45% کامیاب ہوئے۔ 54,756 امیدواروں نے امتحان دیا، 29,283 فیل ہو گئے۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان نے لاہور بورڈ کی کارکردگی کا بھی پول کھول دیا۔ نتائج بورڈ کی ویب سائٹ پر دستیاب۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ لاہور بورڈ کی کارکردگی کے دعوے ٹھس ہو گئے۔ میٹرک رزلٹ انتہائی مایوس کن رہا، 55% طلبہ فیل ہو گئے۔ کامیابی کا تناسب صرف 45% رہا۔ 29,283 امیدوار امتحان پاس نہ کر سکے۔ امتحان میں 54,756 امیدواروں نے شرکت کی۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان میں کل 54,756 امیدواروں نے شرکت کی۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان میں کامیابی کا تناسب 45.43% رہا۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان میں 29,283 امیدوار فیل ہو گئے۔ کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان نے بتایا کہ طالبات میں کامیابی کا تناسب 55% اور طلبہ کی کامیابی کا تناسب 38% رہا۔ بچیوں کی جو پرسنٹیج ہے دیٹ از فار بیٹر ایز کمپیریزن ود کمپیریزن ٹو دا میل۔ اور دوسری جو ہمارے پاس جو اسٹیٹ ہے وہ ہے سائنس اور آرٹس کی۔ سائنس میں زیادہ بچے اپیئر ہوئے ہیں، ٹوٹل بچے 40,147 بچے سائنس میں اپیئر ہوئے ہیں جی۔ اور ان میں جو بچوں کی پاس کی پرسنٹیج ہے دیٹ از 45.82 اور آرٹس گروپ میں ہمارے پاس جو بچے اپیئر ہوئے ہیں وہ ہیں 14,609
اور آرٹس میں جو پرسنٹیج پاس ہونے کی ہے وہ 44.34% ہے۔ سیکرٹری لاہور بورڈ نے بتایا کہ نتائج لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ امیدوار لاہور بورڈ کی ویب سائٹ سے بغیر کسی فیس کے رزلٹ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ شاہدرہ سے رائیونڈ ریلوے ٹریک بنانے میں پیش رفت، پنجاب حکومت نے گرین زون منصوبے کی منظوری دے دی۔ گرین زون منصوبے کے لیے ٹینڈرز جلد طلب کیے جائیں گے۔ گرین زون میں 30 نئے پارک بھی بنائے جائیں گے۔ سپورٹس فٹنس کی سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ شاہدرہ تا رائیونڈ 40 کلومیٹر ریلوے ٹریک کے اطراف گرین زون بنایا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے گرین زون بنانے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ گرین زون منصوبے کے لیے ٹینڈرز جلد طلب کیے جائیں گے۔ منصوبہ 1.5 سال میں مکمل ہوگا۔ گرین زون میں 30 نئے پارک بنائے جائیں گے۔ پارک 3 کنال سے 80 کنال زمین پر بنیں گے۔ ایم ڈی پی ایچ اے راجہ منصور کا کہنا ہے کہ گرین زون وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کا عکاس ہوگا۔ یہ شاہدرہ سے لے کے رائیونڈ تک 40 کلومیٹر کے ایریا کے اندر 30 پارکس بنائے جائیں گے۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے فنڈ مختص کر دیے ہیں، ہم ٹینڈرنگ کے پروسیس کے اندر ہیں، اور یہ کم از کم پارک جو ہے وہ 3 کنال کا، اور میکسیمم پارک کی جو رقبہ ہے وہ 80 کنال تک ہے، اور ہر پارک کے اندر مختلف سہولیات جو ہیں وہ دی جائیں گی جو پارک کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے تفریح کا سامان ہوگا، وہاں پہ کھیلوں کا ہوگا، اوپن جم کا کریں گے، اور آبویسلی پلانٹیشن اور جو گرین ایریا وہ تو ڈیولپ کریں گے تاکہ وہاں کے جو گرد و نواح میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ اپنے بالکل قریب مل جائے۔ ایم ڈی کا کہنا ہے کہ سپورٹس فٹنس کی سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ گرین زون سے آلودگی، اسموک کے مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ بات کریں گے واسا کی۔ واسا کا لکشمی چوک میں جمع ہونے والے بارشی پانی کو محفوظ بنانے کا فیصلہ۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نے واسا کو واٹر سٹوریج ٹینک بنانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل واسا میں جدید کنٹرول روم بنانے کا بھی فیصلہ۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن اقدامات کو کنٹرول روم سے منسلک کیا جائے گا۔ لکشمی چوک میں جمع ہونے والے بارشی پانی کو محفوظ بنایا جائے گا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نے واسا کو واٹر سٹوریج ٹینک بنانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ واسا نے لکشمی چوک واٹر ٹینک کے ڈیزائن اور تخمینے پر کام شروع کر دیا۔ لکشمی چوک میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک واسا آن فنڈنگ یا حکومتی فنڈنگ سے کرے گا، فیصلہ بعد میں ہوگا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے بارش کے پانی کے ضیاع سے بچنے کے لیے واسا کو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کا ٹاسک دیا ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے کہا کہ لکشمی انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بننے کے بعد پانی کا مسئلہ مستقل حل ہو جائے گا۔ سٹور ہونے والا پانی قابل استعمال بنایا جائے گا۔ بڑا سا ایک جو ریزروار ہم بنائیں گے تو لکشمی میں انشاءاللہ آپ کو پانی نظر ہی نہیں آئے گا، جو ایک بڑا سور پوائنٹ بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے، اس کو بھی جو ہے اس گراؤنڈ جو ریزروائر بنا رہے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے ہم یہ والا سسٹم دیں گے کہ فلٹر کر کے پانی نیچے ایکویفر میں جائے، اور یا پھر ہم اس کو سرفیس واٹر کے طور پہ استعمال کریں، یا پھر اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ دوسری جانب ڈائریکٹوریٹ جنرل واسا پنجاب میں جدید کنٹرول روم کی تشکیل کا فیصلہ کر لیا۔ اے آئی ٹیکنالوجی سے مانیٹرنگ، شکایات اندراج کا جدید نظام متعارف کروایا جائے گا۔ صوبہ بھر میں جاری واٹر اینڈ سینیٹیشن اقدامات کو مرکزی کنٹرول روم سے منسلک کیا جائے گا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ہدایت پر جدید کنٹرول قائم کیا جا رہا ہے۔ بات کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم میں پیش رفت۔ اسکیم میں پرائیویٹ اداروں کا کوٹا بڑھانے کی تجویز۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی کوٹا 5000 سے بڑھا کر 10,000 کرنے کی سفارش۔ نئی سفارشات حکومت کو ارسال کر دی گئی۔ حتمی منظوری جلد متوقع۔ طلباء اور طالبات کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم میں پیش رفت سامنے آ گئی۔ لیپ ٹاپ اسکیم میں پرائیویٹ اداروں کا کوٹا بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ہونہار طلباء کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم نئی پالیسی کے مطابق وسیع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کوٹا 5 سے بڑھا کر 10,000 کرنے کی سفارش کر دی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے کوٹا 5,000 سے بڑھا کر 10,000 کرنے کی سفارش حکومت کو ارسال کر دی۔ حکام کے مطابق نئی پالیسی کے تحت پرائیویٹ اداروں کے میرٹ پر آنے والے ذہین طلباء و طالبات بھی بڑی تعداد میں مستفید ہوں گے۔ اسکیم کی توسیع سے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی تک بہتر رسائی حاصل ہوگی۔ سفارشات کی حتمی منظوری جلد متوقع ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے لیے خصوصی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری جانب پیرا فورس کے لیے نئی یونیفارم جیکٹس بنانے کا بھی فیصلہ۔ پیرا فورس اہلکاروں کے لیے 7,000 نئی جیکٹس بنوائی جائیں گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے خصوصی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 32 گاڑیاں خریدنے کی سمری حکومت کو بھجوا دی گئی۔ 16 کروڑ سے زائد کے فنڈز خرچ ہوں گے۔ ابتدائی طور پر تیار ہونے والی گاڑیاں لاہور اور دیگر بڑے شہروں میں دی جائیں گی۔ تجرباتی بنیادوں پر 2 گاڑیاں تیار کروا کر ٹیسٹنگ کا عمل مکمل کروایا جا چکا ہے۔ گاڑیوں کی خریداری کے بعد سامان کی انسٹالیشن پر اوسط 6 لاکھ کے اخراجات آئیں گے۔ دوسری جانب پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی نے پیرا فورس کے اہلکاروں کے لیے 7,000 نئی یونیفارم جیکٹ
जैकेट्स बनवाने का फैसला कर लिया। पैरा हेडक्वार्टर्स की जानिब से जैकेट्स की प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। टेंडर में जैकेट्स की मतवक्के कीमत 49 मिलियन रखी गई है। यूनिफॉर्म जैकेट्स तमाम मौसमों को मद्देनजर रखते हुए बनवाई जाएंगी। जैकेट्स पर नेम प्लेट, पाकिस्तानी झंडा, पैरा का लोगो होगा। पैरा फोर्स के लिए नई जैकेट्स की खरीदारी 1 साल में मुकम्मल होगी। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम स्कूल सरबराहान को अहकामात पर अमल दरामद करवाने का हुक्म दे दिया। तलबा को भी हमनिसाबी सरगर्मियों में शिरकत की तरगीब देने की हिदायत कर दी। अब तलबा स्कूलों में छुपा कर भी मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में तलबा के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर अमल दरामद करवाया जाए। पाबंदी का इतलाक तमाम स्कूलों पर होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम स्कूल सरबराहान को हिदायत जारी कर दी। मरासले में स्कूल सरबराहान को हिदायत की गई है कि वो तलबा को हम निसाबी सरगर्मियों में शिरकत की तरगीब दें। शख्सियत की डेवलपमेंट वाली सरगर्मियों में तलबा की शिरकत को यकीनी बनाएं। वाज़ेह रहे कि पंजाब असम्बली में पास होने वाली करारदाद की रोशनी में मरासला जारी किया गया। ऐवान में मजीद कहा गया है कि बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से भी जल्द कानून साजी की जाए। लेस्को को करंट लगने से शहरियों मुलाजमीन की अमवात पर करोड़ों रुपए का जुर्माना आयद। नेपरा ने लेस्को का जवाब मुस्तरद कर दिया। 2 माह के दौरान 3 करोड़ रुपए की अदायगी करने का फैसला बरकरार रखा है। नेपरा ने लेस्को का जवाब मुस्तरद कर दिया। लेस्को को करंट लगने से शहरियों मुलाजमीन की अमवात पर करोड़ों रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। नेपरा ने 2 माह के दौरान 3 करोड़ रुपए की अदायगी करने का फैसला बरकरार रखा। नेपरा ने लेस्को को करंट लगने से अमवात होने पर शोकोज नोटिस जारी किया। नेपरा ने लेस्को के जवाब को गैर तसली बख्श करार देकर जुर्माने का फैसला बरकरार रखा है। नेपरा ने लेस्को को 60 रोज के दौरान जुर्माना जमा करवाने का हुक्म दिया है। अदम अदायगी पर मजीद महकमाना कार्रवाई होगी। नेपरा ने मुतासरा खानदानों की कानून के मुताबिक मुआवनत करने की हिदायत की है। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल लेस्को को ओवर बिलिंग का जवाब जमा न करवाने पर 2.5 करोड़ का जुर्माना आयद हुआ था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में ज़ेर तामीर तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार। बाबू साबू से सब्जाजार ब्लॉक डी जाने वाली मरकजी सड़क की हालत इंतहाई अबतर हो गई। सड़क पर सीवरेज का तरक्याती काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। रिहायशी शदीद अजियत में मुब्तला है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात जान लेते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। साबू इंटरचेंज से सब्जाजार जाने वाला जो रोड है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। तरक्याती काम की मद में सड़क को खोदा गया, लेकिन उसके बाद जूं का तूं छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से बाबू साबू इंटरचेंज और सगिया साइड से आने वाला जो ट्रैफिक है वो इस साइड अगर जाए तो ट्रैफिक बदतरीन तरीके से जाम रहता है और कई देर तक जो है वो यहाँ से ट्रैफिक जो है वो जैम रहना मामूल बन चुका है। सूरत हाल ये है कि सड़क पर जा बजा पड़े गड्ढे जो है वो ख़ास तौर पर हादसात की बड़ी वजह बन रहे हैं। उसके साथ साथ अंधेरे में डूबा हुआ ये रोड जो है वो खासा खौफनाक मंजर पेश करता है और अमूमन चूँकि आप देखते हैं ये कल्चर बन गया है एक हिसाब से कि रॉन्ग वे से ट्रैफिक का आना जाना भी मामूल है। अंधेरे में अगर इस तरह की टूटी हुई सड़क पर जो है वो रॉन्ग वे से ट्रैफिक आता है तो डेफिनेटली हादसा हो सकता है और इस हवाले से जो है वो शहरी यही मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट को सड़क को जो है वो अगर खोदा है तो फिर उसकी असर तामीर भी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आदियाना तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब गुलबर्ग मुस्तफाबाद का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से खराब है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश से मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश से मकीन दूर दराज से पानी भरने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। गुलबर्ग 3 के इलाके मुस्तफाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां के मकीनों को वासा इंतजामिया की गफलत के बायस साफ पानी की किल्लत का सामना है, क्योंकि इस इलाके में नस्बशुदा जो वाहद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो इंतजामी गफलत की भीड़ चढ़कर कई माह से नकारा होकर गैर फाल है, जिससे इलाका मकीनों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, कब से ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है? दूसरा ये बताएं कि यहाँ के मकीन किस तरह से पानी की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं? 3 सालों तक अभी तक किसी भी अल्लाह हुक्म ने इसका नोटिस नहीं लिया। यहाँ पे गरीब गुरबा मजदूर तबका ज़्यादा रहता है जो कि पानी को ख़रीद के पीने पे मजबूर हो चुके हैं। हम अल्लाह हुक्म से ये अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी पानी का तो कम से कम इसको अवेल किया जाए और इसको प्लांट को ठीक किया जाए। बिल्कुल, दिहाड़ीदार मजदूर तबका जो है वो ज़्यादातर इस इलाके में आबाद है और इनका ये कहना है कि वो दिहाड़ीदार मजदूर तबका जिसे साफ़ पानी की किल्लत का सामना है वो ख़रीद कर पानी की ज़रूरियात पूरी करने पर मजबूर है और जो पानी ख़रीदने से कासिर हैं लोग वो दूर दराज के इलाकों से साफ़ पानी भर कर लाते हैं और लोगों के जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो मफलूज होकर रह चुके हैं। मुस्तफाबाद गुलबर्ग के मकीनों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर अल्लाह हुक्म नोटिस लें और इनके इलाके में कई माह से। बहुत शुक्रिया रुमेल, आप अपडेट कर रहे थे।
दूसरी जानिब फैसल चौक कमाल रोड पर नबीना अफराद का मुतालबात के हक में धरना 11वें रोज भी जारी है। नबीना अफराद ने मुतालबात मंजूर न होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसल चौक में नाबीना अफराद का धरना जारी है। धरने में खवातीन भी शामिल हैं। खुले आसमान तले रातें गुजारने पर मजबूर हैं। धरने की वजह से मॉल रोड फैसल चौक की एक जानिब सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। नाबीना अफराद का कहना है कि एक ही मुतालिबा बावकार व बाइज्जत रोजगार है। हुकूमत पंजाब से उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अब वफाक से मुतालिबात मंजूरी की अपील करते हैं। मैं ये कहूँगा कि आर्मी चीफ और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो ही नोटिस ले लें, क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट तो सुनने से कासिर है। हमें यही उम्मीद थी कि सीएम साहबा पाकिस्तान में नहीं हैं। जब पाकिस्तान आएंगी तो वो ज़रूर हमारी सुनवाई करेंगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक हमें मुस्तकिल रोज़गार नहीं मिलता तो तब तक हम इधर ही हैं, जब तक हमारे सांसें चल रही हैं। हम कह रहे हैं कि आप हमसे काम लें और अल्हम्दुलिल्लाह हम करके दिखाएंगे। हम यहाँ पे हर इंसान को चैलेंज करते हैं कि आप आएँ यहाँ पे आके देखें, हमें कोई काम बताएं, हम ना करके दिखाएं तो आप फिर कहें। गवर्नमेंट ने पहले डेली बेसिस पे रखा तो उसके बाद हमें निकाल दिया डेली बेसिस पे, तो अब हमारे घरों के जो चूल्हे हैं वो बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो हम इंशाल्लाह यहीं पे ही हैं। पुलिस की जानिब से नाबीना अफराद के गिर्द हिफाजती हिसार कायम किया गया है। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में गवर्नेंस का नया मेयार सेट कर दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के तमाम महकमों की कारकर्दगी का 6 घंटे तवील कड़ा एहतसाब किया गया। पंजाब ने अपनी हालिया तारीख में पहली बार 120 अरब की खतीर बजट का संगे मील अबूर कर लिया। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज ने प्रोजेक्ट्स पर अदाद-ओ-शुमार, टाइमलाइन और नताइज पेश किए। तरक्की की नई राहें खोलने के लिए थल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का शुरू करने का फैसला किया गया। पंजाब भर में मजमूई तौर पर 30,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर व मुरम्मत होगी। 100 साल तक चलने वाली खुसूसी प्लास्टिक सीवरेज लाइन का तारीखी मंसूबा शुरू हो गया। पहले फेज़ के 440 मॉडल विलेज दिसंबर 2026 तक मुकम्मल करने का टारगेट सेट कर लिया। पंजाब में अपनी नौयत का पहला सॉल्ट विलेज कायम करने की मंजूरी दी। इजलास में इंडस्ट्रियल जोन में 2 साल में इंडस्ट्री ना लगाने पर प्लांट मनसूख करने की असूली मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मॉडल एग्री माल 3 माह में मुकम्मल ऑपरेशनल कराने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जून के आखिर तक घरों में पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। NX-29 के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान 23 नवंबर को सजेगा। नून लीग से उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, तहरीक इंसाफ से अरसलान अहमद और आज़ाद उम्मीदवार बजाज खान नियाज़ी समेत दीगर मद्दे मुकाबिल होंगे। NX-29 में कुल कितने वोटर्स हैं, कौन कौन से हल्के शामिल हैं, ये रिपोर्ट देखिए। NX-29 का ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,58,364 है। मर्द वोटर्स की तादाद 2,89,339 और खवातीन वोटर्स की तादाद 2,69,025 है। हल्के में इकबाल टाउन के तमाम ब्लॉक्स, सब्जाजार, बंद रोड, बाबू साबू, गुलशन रावी और समनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। NX-29 की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में सियासी जमातों की जानिब से जलसे, रैलियां, इंतखाबी दफातर के इफ्तिताह और कॉर्नर मीटिंग्स जारी हैं। इलेक्शन मुहिम जुमे की रात 12 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नौमान ने ज़िमनी इंतखाबात, इलेक्शन मुहिम और हल्के में जारी तरक्याती कामों बारे इजहार ख्याल किया। 23 नवंबर को NX-29 के वोटर्स हल्के में दरपेश मसाइल के हल के लिए मनपसंद उम्मीदवार को वोट डालेंगे। कैमरा टीम के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूनिक ग्रुप राना ऑडिटोरियम में इंटरमीडिएट इम्तहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के 4 तलबा को कैश प्राइज से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब ने चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम के हमरा जनरल साइंस गर्ल्स ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालबा हादिया यूसुफ को कैश प्राइज दिया। प्री इंजीनियरिंग बॉयज़ ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म मोहम्मद सुबहानी को भी कैश प्राइज से नवाजा गया। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप गर्ल्स में पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालबा हादिया नूर और लाहौर बोर्ड में मजमूई तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालबा हुरम इरफान को कैश प्राइज दिया गया। निशात होटल लाहौर में पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ की जानिब से LLB पार्ट 1 के नए तलबा के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में फैकल्टी मेंबरान और तालबा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ के नए तलबा के एजाज में मुनक़िदा इस्तकबालिया तकरीब में डीन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन पैट्रिशिया मैकलर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डीन पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेसर हुमायूं एहसान, प्रिंसिपल प्रोफेसर तस्नीम कौसर, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर बाबर फरहान, बैरिस्टर शबनम इसहाक, आसिफ सगीर, लेक्चरार अली हसनैन शाह, मोहम्मद अली समेत फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी पैट्रिशिया मैकलर ने तलबा को मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए कीमती मशवरे दिए। डीन पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेसर हुमायूं एहसान और प्रिंसिपल प्रोफेसर तस्नीम कौसर ने भी खिताब किया। तलबा के तालीमी सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। Your personal attention has made so much difference that this degree is improving every year, and by far the best legal program in this country, I can say, is organized by the London University. It is my urge to you all. There is no dearth of challenges in Pakistan, but my positivity lies in the fact that there is no dearth of talent either. There is no dearth of young people like you either. तकरीब के इख्तिताम पर तलबा ने असातिज़ा से मुलाकात की और तालीमी माहौल से मुतल्लिक रहनुमाई हासिल की। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। गर्जन यूनिवर्सिटी में 10वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद 600 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में तालीमी इसनाद तकसीम की गई। 30 डिपार्टमेंट्स के 62 स्टूडेंट को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। गैरिजन यूनिवर्सिटी के 10वें कन्वोकेशन में 600 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में तालीमी असनाद तकसीम की गई। 30 डिपार्टमेंट्स के 62 स्टूडेंट्स को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। चेयरमैन PHEC डॉक्टर इकरार अहमद खान ने कहा, स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट होते देखना अच्छा लगा। एक माइलस्टोन होता है बच्चों की एकेडमिक जर्नी जो है उसमें, कि बच्चे एक साइकिल से गुजरते हैं और ग्रेजुएशन उसकी एक सेलिब्रेशन है, और ये एक रिमाइंडर भी है ज़िम्मेदारी का, और ये इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि ये उनके सफ़र की मंजिल नहीं है बल्कि एक नई मंजिल शुरू हो रही है। वाइस चांसलर गैरिजन यूनिवर्सिटी मेजर जनरल रिटायर मोहम्मद खलील डार ने कहा, हमारी कोशिश है कि स्टूडेंट्स को हमेशा बेहतर से बेहतरीन दें। मैं तो एज ए VC सिर्फ एक ही कोशिश करता हूं कि मैं पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा कल्चर और एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करूं जिसमें बच्चे क्रिटिकली सोच सकें, आपस में बातचीत कर सकें, क्वेश्चन कर सकें। स्टार्ट विद वाई, मैं इनको कहता हूँ कि ऑलवेज स्टार्ट विद वाई। अगर वो वाई से स्टार्ट करेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस होगी। जब वो इन्हांस होती है तो फिर कोई प्रॉब्लम टैकल करना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स ने भी गैरिजन यूनिवर्सिटी के इक़दामात को सराहा। 10th कॉन्वोकेशन पे मुझे गोल्ड मेडल मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में मेरे पेरेंट्स मेरे साथ आए हैं और मैं अपनी सक्सेस जो है वो अपनी फैमिली को, अपने टीचर्स के नाम करता हूँ। किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बेस्ट दिन होता है जब उसे डिग्री मिलती है, और उससे भी बेस्ट होता है जब वो कोई पोजीशन सिक्योर करता है। आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ दैट आई सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन MPhil मास कम्युनिकेशन। मेरा जो गोल है वो ये है कि जैसे मैं आया हूँ, जिस इलाके से आया हूँ, जो रिमोट कह लो, अंडर प्रिविलेज एरिया ले लो कह दो, तो उधर पे जो मुझ में चेंज आया है मैं वो चेंज उनमें भी लाना चाहता हूँ। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज, बेसिक साइंसेज और लैंग्वेजेस समेत 30 डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स शरीक हुए। प्रोफेसर, असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और वालिदैन समेत देगर भी शरीक हुए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज की ग्रेजुएशन तकरीब 2025। तकरीब में तलबा और तालिबात की इल्मी कामयाबियों का जश्न मनाया गया। साबिक वज़ीर कानून अहमद बिलाल सूफी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दी मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज की पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में ग्रेजुएशन तकरीब 2025 का इनेकाद किया गया। 700 से ज्यादा तलबा और तलबात में डिग्रियां तकसीम की गई। CEO डॉक्टर फैसल मुश्ताक ने दौरान खिताब तमाम ग्रेजुएट्स और इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। इनका कहना था कि हमने अपने तलबा को नौकरी के लिए नहीं बल्कि नौकरियां देने के लिए तैयार किया है। मुस्तकबिल में लोग नौकरी के लिए पाकिस्तान आएंगे। इनका फोकस जॉब सेंटर एम्प्लॉयबिलिटी पे, स्किल्स पे, बिकॉज इन पाकिस्तान we don't need more job seekers, we need more job creators, we need problem solvers, we need social entrepreneurs, we need Pakistanis, those who have the spirit of Pakistan and a foreign recognition. साबिक वजीर कानून और इंसाफ अहमद बिलाल सूफी का कहना था कि उम्मीद है कि ग्रेजुएट्स तलबा पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। I look at this remarkable graduating class, I see the future leaders, innovators and change makers of Pakistan and beyond.
Graduates, your qualification is not just an academic milestone. It represents your resilience, adaptability and dedication to lifelong learning. तकरीब में मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ अदारों के फारुगुल तहसील तलबा को इजाज़त से भी नवाजा गया। कैमरामैन अहमद के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। बच्चों के आलमी दिन पर पंजाब में एक मुनफरिद मिसाल कायम। सूबाई वज़ीर तालीम ने एक दिन के लिए अपना अहदा तालिब इल्म के सुपुर्द कर दिया। नन्हे वज़ीर तालीम ने न सिर्फ सरकारी अमूर संभाले बल्कि अहम इजलासों की सदारत भी की। बच्चों के आलमी दिन पर अख्तियारात की हकीकी मुंतकली। पंजाब में तारीख रकम हो गई। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अपने ओहदे का चार्ज एक रोज के लिए तालिब इल्म अबूजर तनवीर को दे दिया। सरकारी गाड़ी, मुकम्मल प्रोटोकॉल और इस्तकबाल करती अफसरान की कतार। नन्हे वजीर तालीम की आमद किसी असल वजीर से कम ना थी। वजीर तालीम की हदायत पर नन्हे वजीर तालीम ने पूरे दिन इजलासों की सदारत की और महकमा तालीम की सरकारी सरगर्मियों की निगरानी भी अपने हाथ में ली। एक दिन के वजीर तालीम अबूजर तनवीर ने कहा, मुझे एक दिन का वजीर बनकर बहुत खुशी हुई। तमाम मीटिंग चेयर की। मुझे तालीम में होने वाली नई असलाहत बारे बताया गया। तालिब इल्म ने वजीर आला पंजाब और वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की तालीमी खदमात को सराहा। सारी टीम के साथ बात हुई है। स्कॉलरशिप्स की बच्चों को फ्री तालीम देनी है। जो माजूर लोग हैं वो हार्डशिप प्रोग्राम दिसंबर के एंड तक ख़त्म होने चाहिए। ये मैंने सारी गाइडलाइंस दी हैं सर को। और मज़ीद ये कि स्कूल्स लेवल पर जो फैकल्टीज़ हैं और फर्नीचर्स वगैरह हैं और मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, ये मैंने सर को गाइडलाइंस दी है, इसको लाजमी श्योर करें। एक दिन के वजीर तालीम ने STIs के भर्तियों पर पेशरफ्त बारे दरियाफ्त किया, जबकि हार्डशिप ट्रांसफर राउंड फौरी खोलने की हदायत जारी की। स्कूलों में सहूलियात की कमी दूर करने के लिए इकदामात पर भी ब्रीफिंग ली और तालीमी अमूर पर अफसरान से मशावरत की। उनका कहना था कि आज के दौर में तलबा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मोबाइल फोन एक डबल एज सोर्ड है, इसके आपको फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके अपने यूजेज पे कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम किताब में बच्चा नहीं समझ सकता किताब से, तो उसको अगर हम विजुअली दिखाएं वो कि उसको या प्रैक्टिकल्स करवाएं कि ये ऐसे काम करता है, ऐसे वर्कआउट करता है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्कॉलरशिप स्कीम गरीब बच्चों की फीस माफी और साजा के लिए ट्रांसपोर्ट सहूलत जैसी तजवीज़ भी दी। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। अलहमरा में MS के इवेंट्स के ज़ेर एहतमाम एक शाम हुमा मिर्ज़ा के नाम के उन्वान से मुशायरा। अदबी बैठक में मुनक्किदा मुशायरे में मुल्की और गैर मुल्की शोहरा ने शिरकत की। अलहमरा आर्ट सेंटर में MS के इवेंट्स के ज़ेर एहतमाम मुशायरा एक शाम हुमा मिर्ज़ा के नाम हुआ। अलहमरा अदबी बैठक में होने वाली महफिल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के शोहरा ने शिरकत की। मुशायरे की सदारत शायर शहजाद नैयर ने की। पाक ऑस्ट्रेलियन शायरा हुमा मिर्ज़ा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।